आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज। So first of all, what is decision making? Decision making is the most important aspect of almost all the programming language. As the name implies, decision making allows us to run a particular block of code for a particular decision. Here, the decisions are made on the validity of the particular condition. Condition checking is the backbone of decision making. So in Python language, decision making is performed by the following statement. Number 1, simple if statement. The if statement is used to test a specific condition. If the condition is true, a block of code means if block will be executed. And second one is if else statement. The if else statement is similar to if statement except the fact that it also provides the block of the code for the false case of the condition to be checked. If the condition provided in the if statement is false, then the else statement will be executed. And last one is nested if statement. Nested if statement enables us to use if else statement inside an outer if statement. So identification in Python language, this is important for you. Python does not allow the use of parentheses for the block level code. In Python, identification is used to declare a block if two statements are at the same identification level, then they are the part of the same block. Generally, 4 spaces are given to indent the statement, which are a typical amount of indentation in Python language. Identification is the most used part of the Python language since it declares the block of code. All the statements of one block are indented at the same level. Indentation. For example, suppose a is equal to 10, b is equal to 20. If a is greater than b, here कोलन, हमने यहाँ पर क्या लगाया है, कोलन. इस कोलन से if का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. किसका ब्लॉक? इस if वाली का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक. ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन को लगाना ज़रूरी है. जैसे सी लैंग्वेज में आप यहाँ पर क्या लगाते थे, इस तरीके से ब्रैकेट. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज में क्या लगाते हैं, कोलन. सेकंड एल्स, फिर कोलन. इस एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, क्लियर. इस तरीके से तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज में ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते. सो इस प्रोग्राम को आइए रन करके देखते हैं. मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी किया एंड मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. देखिए, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20. नाउ नेक्स्ट लाइन है इफ a इज ग्रेटर देन b कोलन, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ से प्रिंट हो, यहाँ से. क्या प्रिंट हो, ये प्रिंट हो, प्रिंट मैक्सिमम नंबर इज. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाए, थैंक यू. एल्स, अगर ये कंडीशन इफ़ की कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट होगा यहाँ से एंड देन यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट मैक्स नंबर इज बी एंड देन थैंक्स. क्लियर. आइए इस देखते हैं प्रोग्राम को रन करके. देखिए, मैक्स नंबर इज 20, थैंक्स, क्योंकि हमने a की वैल्यू 10 ली थी और b की वैल्यू 20 ली थी. कंडीशन चेक करिए, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन हो गई फेल. तो एल्स पार्ट में जाएंगे और जो भी एल्स पार्ट में लिखा है ब्लॉक में वो उसको हम प्रिंट करा दें. नाउ the simple if statement. If statement, the if statement is used to test a particular condition, and if the condition is true, it execute a block of code known as if block.
द कंडीशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट कैन बी any valid logical expression which can be either evaluated to true or false. What is the syntax? Syntax इसका क्या है देखिए, if condition then block of this code and then next statement. सिंपल if statement में else का पार्ट यूज नहीं होता. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक स्टेटमेंट रन हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो सीधे हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. क्लियर? फ्लो चार्ट से समझिए, कंडीशन गिवन है यहाँ पर. अगर एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा. अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो सीधे हम कहाँ जाएंगे, स्टॉप की तरफ जाएंगे. क्लियर? एक प्रोग्राम देखते हैं. राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर. 3 नंबरों में से हमें मैक्सिमम नंबर को क्या करना है, प्रिंट कराना है. तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को. देखिए प्रोग्राम क्या है, हमने 3 वेरिएबल दिए हैं ए, बी और सी. ए की वैल्यू रन टाइम पर पूछी है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, एंटर वैल्यू ऑफ सी. और तीनों वैल्यू कैसी हैं, इंटीजर टाइप की. अब हम कंपेयर कर रहे हैं. क्या कंपेयर कर रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी. ये हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, एंड लगा दोनों के बीच में, अगर दोनों ही ट्रू होंगी तब ये प्रिंट होगा ए इज लार्जेस्ट. ऐसी ये वाली कंडीशन. इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से भी बड़ी है एंड बी सी से भी बड़ी है तो क्या प्रिंट कर देंगे हम, बी इज लार्जेस्ट. ऐसी तीसरे वाले केस में इफ सी इज ग्रेटर देन ए and C is greater than B, then print C is largest. क्लियर? तो प्रोग्राम को रन करते हैं. देखिए एंटर ए की वैल्यू दी हमने 100, एंटर बी हमने दिया 200, एंटर सी हमने कहा 98, बी इज लार्जर. क्या है, बी इज लार्जेस्ट. ये नंबर कैसा है, लार्जेस्ट है. ठीक है, तो ये प्रोग्राम था. ये कंडीशन चेक होंगी. अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है तब तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, ए इज़ लार्जेस्ट. अदरवाइज ये कंडीशन पहली फेल हो जाती है तो दूसरी वाली कंडीशन पर जाएंगे यहाँ पर, यानी दूसरा वाला सिंपल इफ लगा है. अगर ये सही है तो ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, ये भी रॉन्ग है तो ये वाला चेक करके देखो. इस तरीके से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट. नोट, print function is used to print any message or to print the value of any variable onto the screen. Input, this function is used to take input from the keyboard. अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो आपको इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है पाइथन में, और किसी मैसेज को या किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है. जैसे सी लैंग्वेज में आप printf का यूज़ करते थे किसी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज में सिर्फ हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे. सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया जाता था जब हम वैल्यू को रीड करते थे, कहाँ से, कीबोर्ड से. तो ऐसे ही यहाँ पर यानी पाइथन लैंग्वेज में हम वैल्यू को रीड करने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द इफ एल्स स्टेटमेंट. अब ये 2 वे ब्रांचिंग है. ठीक है, सिंपल इफ जो था वो 1 वे ब्रांचिंग था, उससे एक ही रिजल्ट मिलता हमें. अगर ट्रू है तो ठीक, नहीं है तो आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाइए. इफ एल्स में 2 रूट मिलेंगे. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक करिए, अगर कंडीशन फेल है तो एल्स वाला ब्लॉक करिए. तो द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन एल्स ब्लॉक कंबाइंड विद द इफ स्टेटमेंट which is executed in the false case of the condition. If the condition is true, then the if block is executed, otherwise the else block is executed. The syntax of the if else statement is given below. If condition, then ये वाला block execute हो जाएगा.
अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और ये वाला ब्लॉक रन करवा देंगे। ठीक है, इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। कंडीशन लगी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला इफ़ का ब्लॉक रन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा और सीधे कहाँ चले जाएंगे हम, स्टॉप पर। आइए देखते हैं एक प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। ठीक है, एक पर्सन है, उसकी एज को हमें चेक करना है, क्या वो वोट डालने के लिए एलिजिबल पर्सन है या नहीं है। तो आइए रन कराते हैं इस प्रोग्राम को इफ़ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से। देखिए, एज नाम का एक वेरिएबल लिया गया है और हमने यूज़र से पूछा है, क्या पूछा है, इनपुट एंटर योर एज। आप इसकी जगह देख रहे होंगे यहाँ इनपुट लिखा है, तो इनपुट का मतलब हम कीबोर्ड से वैल्यू लिख रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं एंटर योर एज। ठीक है, और ये जो भी एज आप कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं वो किस में जारी होगी, एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में। ठीक है, यानी फाइनल ए जो इंटीजर वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, एज में आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे, एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो यू आर एलिजिबल टू वोट, और ये कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो यू हैव टू वेट, सॉरी यू हैव टू वेट। तो रन करिए प्रोग्राम को। देखिए, एंटर योर एज, हमने कहा हमारी एज तो 56 है, एंड देन रिजल्ट यू आर एलिजिबल टू वोट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं दोबारा से रन करके। एंटर योर एज, हमने कहा 10, सॉरी यू हैव टू वेट। क्लियर। ये मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इंटीजर जो होता है वो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर हटा दूँ तो देखिए क्या होगा, एक एरर जनरेट आएगी स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन की। एंटर योर एज, हमने कहा 12। देखिए ये आगे ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेज ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर को जो है ये सपोर्ट नहीं करता, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इंटीजर। इंटीजर लिखना नहीं चाहते तो इवैल फंक्शन का यूज़ कर दिया। इवैल का मतलब इवैल्यूएट, रन टाइम पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको इवैल्यूएट करके उसको वेरिएबल को प्रोवाइड करा दीजिए। नाउ देखिए, एंटर योर एज, हमने कहा 25 तो यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये प्रोग्राम बच्चों क्लियर हो गया होगा। एक प्रोग्राम और देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और नॉट। कोई नंबर इवन है या नहीं है, ये पाइथन में कैसे चेक होगा, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट कर दिया। ठीक है, नंबर में वो वैल्यू ले ली जो आप नंबर लेना चाहते हैं, उस नंबर को चेक करेंगे कैसे, नंबर मोड बाय 2। मोड क्यों लगाया है, क्योंकि हम उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, शेषफल। अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या लिख देंगे, नंबर इज इवन, और 0 के इक्वल नहीं आता तो नंबर इज ऑड। आइए देखते हैं, एंटर द नंबर, हमने कहा नंबर हमारे पास 14 है तो 14 नंबर कैसा होता है, इवन। दोबारा से प्रोग्राम को रन करिए, हमने कहा हमारे पास नंबर है 25 तो नंबर इज ऑड। तो ये चीज़ बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जांपल। देखिए, क्या आपने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है सी लैंग्वेज में, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। देखिए, a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 330 है। हमने लिखा है प्रिंट a इफ a इज ग्रेटर देन b एल्स प्रिंट b। प्रिंट a को प्रिंट करिए कब, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, उस केस में प्रिंट a होगा। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो उस केस में एल्स वाला प्रिंट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वर्क कर रहा है जैसे टर्नरी ऑपरेटर में वर्क करते थे।
क्लियर। तो आइए रन करके देखते हैं। बी, क्या आंसर आया? बी। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देता 2002, तो वो आंसर क्या आता है इसका? ए आया ना, प्रिंट ए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 2002 इज ग्रेटर देन 330, तो क्या हो गया? प्रिंट ए हो गया। क्लियर। तो दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल एक्सप्रेशन। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, you can have if statement inside if statement, this is called nested if statement, means एक if statement के अंदर दूसरा if statement जब आ जाता है तो उस पूरे कंस्ट्रक्ट को हम क्या बोलते हैं? nested if statement बोलते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, x इज इक्वल टू इंटीजर, इनपुट एंटर एनी वैल्यू ऑफ x, x की कोई एक वैल्यू दीजिए। सपोज दैट आपने यहाँ पे 12 वैल्यू दे दी, कंडीशन लगाई इफ 12 इज ग्रेटर देन 10, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या आ जाएगा प्रिंट होके? द वैल्यू ऑफ x इज अबव देन 10। अगर सपोज दैट ये कंडीशन हो जाती है फेल, तो हम इस वाले इफ पर जाएंगे तो ये वाला प्रिंट कर देंगे, एल्स ये वाला प्रिंट कर देंगे। क्लियर। रन करके देखते हैं। एंटर एनी वैल्यू ऑफ x, हमने कहा 25, तो क्या मैसेज आएगा? द वैल्यू ऑफ x इज अबव 10 एंड आल्सो अबव 20। क्लियर। इस तरीके से सपोज दैट अगर पहली ही कंडीशन फेल हो जाए, इस केस में पहली ही कंडीशन फेल हो जाए, हम ये कहें कि x की वैल्यू हमारे पास 8 है, तब कोई आंसर आया? कोई आंसर नहीं आया। तो अगर आपको आंसर लाना है तो इस आउटर वाले इफ का एक एल्स पार्ट और लिखना होगा। तो आइए इस आउटर वाले एल्स का एक पार्ट लिखते हैं, इफ का एक पार्ट लिखते हैं। एल्स मैसेज देते हैं प्रिंट द एंटर्ड वैल्यू इज लेस देन 10। ठीक है, अब रन करिए। हमने कहा एंटर वैल्यू ऑफ x 8, क्या मैसेज आएगा? द एंटर वैल्यू इज लेस देन 10। तो ये बच्चों आप समझ गए होंगे, ये मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार भी। ठीक है, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी पूछा जाएगा। तो वी आर चेकिंग मल्टीपल कंडीशन यूजिंग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मोर देन वन कंडीशन हो, मल्टीपल चॉइसेस हो, तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। जैसे आपने स्विच केस पढ़ा था किसमें? सी लैंग्वेज में। तो ये स्विच केस का एक अल्टरनेटिव है या फिर इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होगा। इफ कंडीशन तो ब्लॉक ऑफ कोड 1, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये वाले रन करो, ये भी ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन चेक करो और ये वाला ब्लॉक रन करा दो। सपोज दैट ये भी ट्रू नहीं, ये भी ट्रू नहीं, ये ऊपर वाली भी ट्रू नहीं, तो एल्स पार्ट में जाओ और यहाँ पर जो भी कोड आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करवा दो। क्लियर है। इस तरीके से देयर कैन बी मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स। एलिफ की फुल फॉर्म होती है इल, मीन्स एल्स का स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं इल, एल्स ELSE। तो एल्स में से हमने क्या ले लिया? इल, और इफ तो है ही है तो इल इफ, एल्स इफ बोलते ना उधर, तो एल्स इफ, तो एल्स का इल आ गया तो इल इफ ब्लॉक्स। हाउएवर देयर इज ओनली एल्स ब्लॉक इज allowed. Out of all these blocks, only one block of code gets executed. If the condition is true, then the code inside if gets executed. If condition is false, then the next condition is evaluated and so on. तो आइए देखते हैं एक प्रोग्राम। जी यहाँ से डिलीट करो, उसको फिर दोबारा कॉपी करना होगा क्योंकि सिलेक्शन हट जाता है। अब पेस्ट करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एंटर द नंबर। एक हम नंबर एंटर कराएंगे और चेक करेंगे क्या वो नंबर अगर 10 के इक्वल है तो ये आ जाएगा इक्वल टू 10, इक्वल अगर 50 के है तो नंबर इज इक्वल टू 50, अगर इसके 100 के है इक्वल 100,
और ये तीनों ही कंडीशन फेल हो जाती हैं तो क्या आ जाएगा, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। देखिए एंटर नंबर हमने कहा 35, क्या मैसेज आएगा, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। दोबारा से रन करिए, हमने वैल्यू दी 50, तो देखिए नंबर इज़ इक्वल टू 50। एक बार और रन करिए, हमने कहा नंबर हमारे पास 100 है तो नंबर इज़ इक्वल टू 100। क्लियर, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, टू प्रिंट द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रेड हमें प्रिंट कराना है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग या उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये भी हम प्रोग्राम करा लेते हैं जल्दी से। एक बार सिलेक्शन और लेना पड़ेगा यहाँ से। देखिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमने इनपुट कराए हैं, मार्क्स इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द मार्क्स। सपोज दैट यूजर ने अपने मार्क्स 75 कर दिए, तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं 75 इज ग्रेटर देन 85 यस, एंड मार्क्स इज लेस देन 100 यस, तो क्या आ जाएगा, कांग्रेट्स यू स्कोर्ड ग्रेड ए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये वाला कंडीशन चेक करेंगे और क्या आ जाएगा, यू स्कोर्ड ग्रेड बी। ये भी फेल है तो ग्रेड यू स्कोर्ड ग्रेड बी, ये बी प्लस था, ये बी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा, एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा, सॉरी। तो आइए रन करते हैं, एंटर द मार्क्स, हमने कहा 45, तो देखिए क्या आया, यू स्कोर्ड ग्रेड बी। ठीक है, दोबारा से रन करिए, हमने कहा यहाँ पे हमारे मार्क्स तो हैं 90, तो क्या है, कांग्रेट्स योर ग्रेड इज ए। क्लियर, तो ये थे बच्चों आज के प्रोग्राम। ठीक है, और ये था आपका आज का लेक्चर। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।